थैंक यू सर। एक बार कंफर्म कर लें कि मेरी आवाज़ अगर आ रही है कि नहीं सारे पार्टिसिपेंट्स को, आप सबको मेरी तरफ से। अच्छा अच्छा। जी जी। अब मेरी आवाज़ आ रही है? ओके ओके। ओके सर, आई विल गेट इट। इज दैट ओके नाउ? या ओके। चलिए। अ, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग और ग्रीटिंग्स, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, all the respected speakers, and all the delegates, and all those who have already delivered. And I was listening to some of the fascinating speeches of our speaker, Binda ma'am, and then Malvika ma'am, and it was very informative. And though मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के आसपास जाकर के चाय वगैरह पीता था। तो स्पेशली आई एम स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो मेरी एमएससी एग्रीकल्चर और पीएचडी इन प्लांट फिजियोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई है। तो जैसा कि सर ने कहा, मेरे पास 15 से 18 मिनट है। मैं हार्डली 10 मिनट लूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे स्पीकर्स हैं और बहुत रश है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजर, प्रोफेसर अनुराधा मैम, प्रोफेसर घनश्याम सर, for allowing me to be part of this webinar, and to share my view about what exactly we are going through, what exactly the whole world is going through, and how to respond, and how the responses are being responded. So as we all know, the theme of the seminar is epidemic history society. So I would like to give you a brief introduction of what exactly I stand for, what we are exactly doing in India, in other part of the country, and where we are heading. So basically we are working with United Nations Environment Program, major group for children and youth. So where we are involved in climate advocacy, and we are being a vocal voice on several UN platforms, and we make sure that environmental conservation and sustainability goes hand in hand all across the globe. तो हम लोगों की ये कोशिश रहती है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उन दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश रहती है। और जो यूथ वॉइसेस है, और उनको जैसे कि कई लीडर्स हैं, बांकी मून, नेल्सन मंडेला, प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी, एंड और भी ऐसे कई लीडर्स हैं जो ये मानते हैं कि यूथ वॉइसेस आर ऑफ ग्रेटर इम्पॉर्टेंस टू मेक देम हर्ड। तो वी आर वर्किंग ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, क्लाइमेट एडवोकेसी, क्लाइमेट जस्टिस, and environmental protection and biodiversity conservation. So I would like to briefly discuss what exactly this pandemic is making me to understand, and what I have understood till now, the emergence and the historical perspective. So first of all, I am not a history student, so let me excuse that I will not be able to give much insight on historical perspective of COVID-19. But I will try my level best to get into what exactly, what are the factors which makes a rare zoonotic disease an international disaster. आप देखें, तब जब 2008 में सार्स एक वायरस आया था, दैट टाइम उसके 2-3 साल पहले किसी ने सार्स के बारे में सुना नहीं था, और अगर सुना था तो वो किताबों में सुना था। यही चीज़ कोविड-19 के साथ भी हुई है। कोविड-19 अननोन नहीं था, ये नोन था किताबों में, रिसर्च लेबॉर्ट्रीज में। और कोरोना वायरस को तो जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं और जो साइंटिस्ट हैं, दे नो इट फॉर लॉन्ग सेंचुरीज, बट द फैक्ट इज, एज एन एनवायरमेंटलिस्ट, हाउ आई परसीव दिस कोरोना थ्रेट, दैट
it was a non-essential, non-threatening, an emerging zoonotic disease. ये एक ऐसी डिजीज थी जो बहुत ही माइनर थी और इसके बारे में वर्ल्ड एपिडेमियोलॉजी में या फिर WHO के एपिडेमियोलॉजी डिवीजन में इतना ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलता था. बट एट अ सडन पॉइंट ऑफ टाइम इन 21st सेंचुरी या 2020 में ऐसा क्या हो जाता है कि एक रेयर जूनोटिक डिजीज इंटरनेशनल डिजास्टर का रूप ले लेती है. what happens or what are the reason that a particular non or rare zoonotic disease becomes an international disaster or internationally recognized threat to the lives of millions and millions of humankind. So I think if you allow me to present a 2-3 slides between 2-3 minutes, I'll be able to do that. So I think I have been disabled, so I would request the host to kindly make me co-host so that I can present a PPT. So kindly make me co-host. Yeah. Thank you, sir. Kindly allow me to share the screen. I think I will be able to better deliver it. Okay, thank you. Yeah, thank you. I think I'm allowed. Can you see my screen? If you can confirm it. Okay. Okay. Okay, sir. I will wind up within 3 minutes. Thank you, sir, for reminding me. Okay. So this is a bit different presentation, but the content I want to highlight. Ecosystem and emerging zoonotic disease of a viral nature, coronavirus disease and the COVID-19 and government reports against the pandemic. 3 चीज़ें हैं कि इकोसिस्टम और इमर्जिंग जूनोटिक डिजीज़ में, मतलब एक इसको अगर सिंपल भाषा में समझाए कि हमारे गली का एक छोटा सा पेट या छोटा सा डॉग का बच्चा या छोटा सा जानवर शेर कैसे बन गया, या फिर वो जंगल का राजा कैसे बन गया, या फिर वो ऐसा कैसे बन गया कि समाज के सारे लोग उससे डरने लगे. तो ये जो पहला टॉपिक है वो उससे डील करता है. दूसरा जो टॉपिक है वो थोड़ा मेडिकली है, तो मैं उसको थोड़ा स्किप करूंगा. जो गवर्नमेंट रिस्पांस है उसके बारे में थोड़ा सा मैं 25-30 सेकेंड लूंगा. मैं एक बात कहना चाहूँगा विद ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी. इफ आई एम नॉट करेक्ट देन काइंडली मेक मी करेक्ट इन चैट बॉक्स. सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ह्यूमन्स आर बॉर्न विथ रिस्क, एंड दिस रिस्क नॉट द रिस्क दे पोज टू देमसेल्फ, but the risk they pose to the mother nature. And I think I'm going to tell you one statement, and everybody I think will agree with me that human species, there are lakhs and millions of species on this planet Earth. Human species is the most selfish species on this planet Earth. The reason I'm telling you that because of the unlimited ends, unlimited means and unlimited desire of human being, we are posing billion and billion number of and different type of threat and dangerous phenomena to the nature. तो अगर मैं अमीर हूं तो मैं ऑल्टो से गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मुझे एक मर्सरीज चाहिए या फिर मुझे एक लिमोजिन चाहिए. और अगर मैं ज्यादा अमीर हूं तो मैं एक फोन नहीं रखूंगा, मैं 4-5 फोन रखूंगा. मैं एक कमरे में भी रह सकता हूं, लेकिन पैसा अगर ज्यादा है तो आई विल गो फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. In return, this statement might be silly, but what I'm telling you seriously from environmental point of view, that we are posing serious threat to nature. और ये जो COVID-19 है, this is not the fault of nature. This is a simple answer of nature to the over exploitative behavior of human being.
हमने जो पेड़ों को काट दिया, हमने जो नदियों को सुखा दिया। अभी बिंदा मैडम जलाशय के बारे में बहुत अच्छा बता रही थी, जो सूख गए कुएं, ये क्यों सूख गए? क्योंकि हमने ग्राउंड वाटर का इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया। सो वी आर द मोस्ट सेल्फिश एंड देयर इज ए कंपेलिंग रीजन टू बिलीव दैट ह्यूमंस आर द ओनली स्पीसीज विद द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट दे लिव बिफोर गोइंग टू जन्नत और स्वर्ग। यू नो, ये सिंपल पिक्चर है जो बता रहा है कि हम लोग बैठ के कर क्या रहे हैं। हम लोग पिज्जा बर्गर खाते हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ कटिंग डाउन अ ट्री विच टेक्स अनदर 50 years टू ग्रो अप। सो देयर इज अ ट्रू फोल्ड बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। ये टू फोल्ड है। पहला फोल्ड ये है कि पॉजिटिव यूज होता है, दूसरा फोल्ड ये है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। तो ये सिंपल पिक्चर है कि हम लोग एयर को कैसे बहुत बुरी तरीके से प्यूरिफाई करने की कोशिश करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग आवरसेल्फ द बेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये किसी भी कंट्री के साथ ऐसा होता है। तो ये एक चीज समझने वाली है जो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये जो इमरजेंस ऑफ पेंडेमिक है, इट ब्रिंग्स ए मैसिव चेंज इन एपिडेमियोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ ए रीजन। मतलब कि अगर इंडिया में 10 साल पहले डेंगू नहीं था, आज अगर डेंगू मान लीजिए अगर है, तो वो ये मेजर क्यों बन रहा है? आज हम लोगों को कूलर में पानी बार बार क्यों झांकना पड़ रहा है कि पानी क्यों खराब हो रहा है? इट मीन्स कि नेचर हैज रेस्पॉन्डेड इन सच ए मैनर कि हम लोगों को रेयर जो जीनोटिक डिजीज थी वो हमारे लिए इंटरनेशनल डिजास्टर बन गया। ये एक सिंपल, मैं एक साइकोलॉजिकल फीलिंग देना चाह रहा हूं अपने सारे पार्टिसिपेंट को। ये जो लाल लाल पिलर आप कोरोना वायरस पे देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द रेड स्पॉट दैट वी हैव लेफ्ट ऑन द मदर नेचर। तो आप कोविड-19 के लिए नेचर को कभी ब्लेम मत कीजिए कि ये कैसे आ गया। ये चमगादड़ को भी आप ब्लेम मत कीजिए ये कैसे आ गया। ब्लेम करना है तो सिर्फ और सिर्फ मानव जाति को ब्लेम कीजिए। और मैं एक सिंपल रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ट्राई टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। ये एक सिंपल ग्राफ है जो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। WHO का ये ग्राफ है जो ये कहता है कि कई कई कंट्री में अफ्रीकन, व्हाट इज हैपनिंग इन अफ्रीका, व्हाट इज हैपनिंग इन अमेरिका, इन ऑल द कंटिनेंट। सो दिस इज द थिंग which is being delivered. So I will just wind up within 1 minute, I think. Okay. So how do I bring that my screen? Yeah. Yeah. That. Yeah. So what I want to tell that I want to just conclude that this particular international webinar on epidemic, society and environment should leave a print on the participant. मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये मेरा जो लेक्चर है ये लेक्चर में तब्दील ना हो, ये एक तरह का प्रेजेंटेशन बने और मुझे भी फीडबैक मिले कि हम लोग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं। तो फॉर द पार्टिसिपेंट हु आर रिसर्च स्कॉलर, हु आर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू शेयर सर्टेन इंफॉर्मेशन सो दैट दे कैन गेट बेनिफिट। इफ आई कैन गेट हार्डली 30 सेकेंड परमिशन फ्रॉम द होस्ट कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने, आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, वहां पे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स आपको कोविड-19 हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोविड-19 के बारे में आपको वहां पे मिलेंगे। आप वहां पे जरूर जाएं और ऑनलाइन कोर्सेज को ऑफर करें। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आई एम टेलिंग यू, जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा इसी कोर्स का दाम $100 हो जाएगा। ये पहली बात है, इसको नोट डाउन कर लें। दूसरा है डीकेन यूनिवर्सिटी, DEAKIN, डीकेन यूनिवर्सिटी। इफ द होस्ट विल आस्क मी, आई विल गिव अ डिटेल लिंक आफ्टरवर्ड। डीकेन यूनिवर्सिटी में भी एक ऑनलाइन कोर्स हो रहा है ऑन पेंडेमिक एंड हिस्ट्री ऑफ जूनोटिक डिजीजेस। दूसरा जो कोर्स है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे है, आप उसको जरूर जाएं और उसको रजिस्टर करें और अपने आप को इन सब चीजों में जरूर इन्वॉल्व करें। यू विल गेट टू नो अपडेट इंफॉर्मेशन अबाउट कोविड-19। ए सिंपल रिक्वेस्ट आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन that all the participants kindly go for helping the poor, because I'm not dictating it, I'm requesting it, because we have been looking in Africa. Last 2 days back there was an African regional online workshop
We saw certain video from Kenya which were very disturbing. We saw certain video from Muzaffarpur railway station which are very disturbing. So I request all of you to kindly come forward whatever is possible and help the poor emotionally, financially, economically, whatever is possible, and stay safe, stay home. And this is all about. And I would like to conclude. I would like to thank the organizer for making my voice, very small voice, very young voice, available, and make me here at this platform. So I would like to thank Professor Anuradha ma'am, Professor Ghanshyam ma'am, and all the revered scholars. I can see Professor Mohan Khan sir. So good afternoon everyone, and thank you very much. Jai Hind.